Raj and today I am demonstrating a topic from human physiology, that is digestion and absorption. Okay, as we all know, food is the basic requirement of every living organism. So आज के टॉपिक में the digestion and absorption हम क्या देखेंगे? How the food we take from outside is digested and absorbed in our body. So for the understanding of this topic, आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है. सेकंड हम देखेंगे व्हाट इज डाइजेशन, मीन्स जो हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कैसे होता है. थर्ड हम देखेंगे व्हाट इज अब्जॉर्प्शन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस. एंड लास्टली हम देखेंगे व्हाट आर द डिसऑर्डर्स दैट आर कनेक्टेड विद अबनॉर्मल डाइजेशन. सो एज वी आर डिस्कसिंग द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है. सो अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. क्या बोलेंगे हम इसको? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू simple absorbable form, into simple absorbable form. Okay, so to understand this process सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है. सो डाइजेशन हमारा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? एक टर्म होती है इंजेशन. जो हमारा इंजेशन है ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड इनटू माउथ. तो हम इनटेक ऑफ फूड को क्या बोलेंगे? इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन. ओके, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. It consists of basically two main parts. First is our alimentary canal, and the second one is our associated glands. Okay, as we are discussing about the alimentary canal, let's start it with a diagram. Our alimentary canal starts with an opening known as mouth, okay, which leads to a cavity known as buccal cavity or oral cavity. What it is known as? Buccal cavity or oral cavity, which further leads to a common opening for the windpipe and the food pipe, which is known as pharynx. So pharynx हमारी क्या हुई? pharynx हमारी एक common opening है for our food pipe and for our windpipe. इसके बाद डिसेंड डाउन अगर हम करते हैं तो हमारे आती है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं. आफ्टर डिसेंडिंग डाउन इट लीड्स टू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टमक, which is known as stomach, which further leads to a highly coiled part known as small intestine, which further leads to a highly coiled part which is known as small intestine. Okay, so our small intestine further opens into a less coiled part which is known as large intestine. This highly coiled part is known as small intestine. It is known as small intestine.
and this less coiled part is known as large intestine. And the sac-like structure at the end of the large intestine is known as rectum. And at the posterior end of the alimentary canal, from where the wasted material of our digested food is ejected, is known as anus. So the process of ejecting out the waste from the body is known as ejection. Ejection. हमने जो प्रोसेस ऑफ इनटेक था उसको बोला था इंजेक्शन, एंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट इज नोन एज ejection. Okay, so let's discuss all this part one by one. Okay, starting from the buccal cavity. In our buccal cavity, there are mainly two things that help in our digestion. First is our teeth, and second is our tongue. So firstly we will discuss about teeth, then we will discuss tongue. Okay, so human teeth are arranged in a socket like arrangement. इस बात का क्या मतलब है? अगर हम jaw bone का एग्जाम्पल लेके देखें, suppose this is our jaw bone. In the jaw bone there are various sizes sockets are present for the arrangement of teeth. The teeth are arranged in a socket like arrangement. So this type of presentation of teeth is known as thecophyodont. It is known as thecophyodont. Okay, if we talk about mammals including human beings, there are two sets of teeth appear in their whole life. Two sets में क्या क्या होंगे? First होंगे उनके temporary teeth and second are their permanent teeth. So temporary teeth हम क्यों बोल रहे हैं इनको? Temporary teeth या deciduous teeth इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो प्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं एट द अर्ली एज. ओके, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये जो टेथ होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी. ओके, और दे फॉल डाउन. और जो परमानेंट टेथ होते हैं ये हमारे सर्टेन एज के बाद ही अपीयर होते हैं, एंड अप टू अ सर्टेन एज और अप टू ऑलमोस्ट लाइफ टाइम they persist. So this type of presentation involving the temporary and the permanent type of presentation is known as diaphyodont. इसको हम क्या बोलेंगे? Diaphyodont. ओके, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर 32 टेथ होते हैं. ओके, एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर हमारे 32 टेथ होते हैं. वो हमारे 4 डिफरेंट वैरायटीज के साथ प्रेजेंट होते हैं. These are of 4 different varieties. Okay, so this type of presentation or dentation is known as heterophyodont. Is known as heterophyodont. Okay, so हमने क्या पढ़ा कि सॉकेट लाइक प्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे थीकोफाइडोंट. टू टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दैट इज टेम्परेरी एंड परमानेंट, उसको हम बोलेंगे डायाफाइडोंट. एंड दिस 4 डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेथ प्रेजेंटेशन इज नोन एज हेटेरोफाइडेंट. ओके, सो अगर हम बात करें द स्टडी ऑफ टेथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी. इट इज नोन एज ओडोंटोलॉजी. ओके, अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमने बात की हेटेरोफाइडोंट में कि हमारे 4 वैरायटी ऑफ टेथ होते हैं. तो वो कौन सी वैरायटी होती है? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे होते हैं इंसीजर्स. सेकेंडली हमारे होते हैं केनाइन्स. उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, एंड देन आर मोलर्स. ओके,
जो हमारे 4 वैरायटी के टिथ हैं इनकी शेप सबकी अलग अलग होती है और मे बी प्री मोलर और मोलर मे बी समथिंग सिमिलर इन शेप। ओके, अगर हम बात करें ऑफ द डेंटल फॉर्मूला फॉर द ह्यूमन बीइंग, इट इज प्रेजेंटेड बाय 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। सो 2, इससे हम डेंटल फॉर्मूला से क्या समझते हैं, अगर हम सबसे पहले अगर इस सीक्वेंस में देखें, इंसीजर्स हमारे जो अपर जॉ में और लोअर जॉ में जो हमारी डेंटिशन है वो सिमिलर होती है। सो अगर हम इंसीजर को देखें तो हमारे अपर जॉ का अगर हम एग्जांपल लें तो अपर जॉ में हमारे कितने इंसीजर्स होंगे, 4 इंसीजर्स। ओके, सो इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अपर जॉ, देयर आर 4 इंसीजर्स and 2 canines. Our canine are also known as tear teeth. तो हम इनको tear teeth क्यों बोलते हैं, because of their chisel shape presentation. इनकी जो शेप होती है वो होती है chisel shape. chisel shape presentation की वजह से इनको बोला जाता है tear teeth. ओके, सो इसके बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर और मोलर्स। प्रीमोलर हमारे 2 सेट होते हैं बायलेटरल। ओके, और जो हमारे मोलर होते हैं ये हमारे 3 सेट होते हैं बायलेटरल। ओके, सो अगर हम इनकी बात करें, जो लास्ट मोलर हमारी होती है इसको बोला जाता है विजडम टूथ। क्या बोलते हैं, विजडम टूथ। And it mostly present in the age of 23 to 26 years of age. Okay, so this is all about the structure and presentation of teeth in human body. So हम अगर देखें कि जो हमारे टीथ होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, we all know the teeth functions for the chewing of food. Okay, जो हमारा टीथ होता है उसका हार्डेस्ट पार्ट जो होता है, अगर हम बात करें, this is the upper part of our teeth. So the hardest part of the teeth is made up of a substance named as enamel. It is known as enamel. Okay, so this is all about our human teeth. Now we will discuss the structure of tongue and the functions of tongue. Okay, tongue is the muscular organ in our buccal cavity that is freely movable, but it attached to the floor of our buccal cavity by frenulum. By frenulum. Okay, so टीथ हमारी मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर वेरियस साइजेस के पेपेलास प्रेजेंट होते हैं। अब पेपेलास क्या होते हैं, पेपेलास जो हमारे होते हैं वो वेरियस प्रोजेक्शंस होती हैं हमारे टिथ के ऊपर, टंग के ऊपर, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर कैरिंग द टेस्ट बर्ड्स। और टेस्ट बर्ड्स हमारी क्या करती हैं, टेस्ट सेंसेशंस को कैरी करवाती हैं। किसकी टेस्ट सेंसेशन, जो फूड या फिर जो भी इंजेक्शन हमने किया है। अगर हम टंग की स्ट्रक्चर देखें, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टंग, देयर आर वेरियस साइजेस ऑफ पेपिला प्रेजेंट ओवर ऑल द सरफेस ऑफ द टंग। ओके, सो अगर हम एग्जांपल लें, द टिप ऑफ द टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट सेंसेशंस ऑफ sweet food, and the sides of the tongue are responsible for sour food, and the end of the tongue is responsible for carrying the sensations of bitter food. But the middle of the tongue has no taste sensations or taste buds. Okay, taste sensations होते हैं but taste buds नहीं होती है, ठीक है। और जो सोल्ट के लिए अगर हम पेपिलास की बात करें वो हमारे थ्रू आउट द टंग स्प्रेड होते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर टंग। आवर टंग हेल्प इन आवर स्वेलोइंग प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेलोइंग को डीग्लूटिशन। क्या बोल सकते हैं, डीग्लूटिशन। The process of swallowing of food is known as deglutition. Okay, so हमने बक्कल कैविटी को डिस्कस किया। मेनली इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, टीथ एंड टंग। देन द बक्कल कैविटी लीड्स टू अ कॉमन ओपनिंग नोन एज फेरिंग्स। हमने उसके बारे में डिस्कस किया। इन द फेरिंग्स
अबव अवर विंड पाइप हमारे कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं हम? एपिग्लोटिस। सो इस कार्टिलेजिनस फ्लैप का काम क्या होता है, हाउ इट फंक्शंस? जब भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं और स्वेलो करते हैं, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू अवर विंड पाइप और द ग्लॉटिस, इनटू द ग्लॉटिस. So what is glottis? Glottis is the opening of our windpipe. Is it clear? So pharynx leads to a pipe-like structure which is known as esophagus. Which is known as esophagus. So esophagus is a pipe-like structure जिसके अंदर digestion का process नहीं होता, but इसके अंदर कुछ muscular movements होती हैं. Those are responsible for swallowing of फूड. ओके, सो इस मस्कुलर मूवमेंट्स को, इन मस्कुलर मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज आर नोन एज पेरिस्टाल्सिस. दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस. ओके, सो पेरिस्टाल्सिस हमारी क्या हुई? दीज आर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ ईसोफेगस. ओके, सो esophagus leads to a bag-like structure which is known as stomach. It is known as stomach. Okay, so stomach is a bag-like structure of J shape. It is a bag-like structure of J shape. इसके basically 4 पार्ट होते हैं. First is a cardiac, second is our fundus, third is our body, and the fourth one is known as pyloric. Okay, so अगर हम डायग्राम में देखें, just below our esophagus the part is known as cardiac and the upper part is known as fundus, and this portion is known as body, and the lower part is known as pyloric region. Okay, so the above end and the below end of the stomach are guided by sphincters. The sphincter which divides the esophagus and the stomach is known as gastroesophageal sphincter. Gastroesophageal sphincter. And the sphincter that is present at the end of the pyloric region is known as pyloric sphincter. So अगर हम फंक्शन की बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर? तो जो हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है ये प्रिवेंट करता है रीगर्जिटेशन ऑफ फूड को. तो रीगर्जिटेशन ऑफ फूड क्या होता है? जब हमारा फूड स्टमक के अंदर चला गया है, उसके बाद वो स्टमक के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं उसकी वजह से फूड वापस हमारा ईसोफेगस में मूवमेंट ना कर जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा कौन फंक्शन करता है? गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर. और ये क्यों प्रिवेंट करता है इसको? क्योंकि हमारा जो स्टमक है इसके अंदर हाईली एसिडिक पीएच होती है विच कैन डैमेज द मसल्स ऑफ अवर ईसोफेगस. ओके, सो स्टमक लीड्स टू हाईली कॉइल्ड पार्ट विच इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो विच इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन. Our small intestine is further divided into 3 parts. First is our duodenum, second is our jejunum, and third is our ileum. Okay, so the C-shaped structure or the U-shaped structure is known as duodenum. Okay, so after this the little less coiled part is known as jejunum and the highly coiled part
or most of the part of the small intestine is known as ileum. In the concavity of this duodenum, a leaf-like structure is present, which is known as pancreas. Okay, so is it clear? These are the three parts of our small intestine. At the end of small intestine, a wall is present between the small intestine and the large intestine, which is known as ileocecal wall. Ileocecal wall. And it functions as to prevent the backflow of feces into the small intestine. Okay, is it clear to you? Okay, after the small intestine, it leads to a part known as large intestine. Large intestine. So, our large intestine has basically four parts. First is our cecum. Okay. Second is our colon. The cecum is the lowest part of our large intestine. Okay. This is our cecum. And at the end of this cecum, a blind sac or a rudimentary organ is present, which is known as vermiform appendix. It is known as vermiform appendix. This appendix can get inflamed and lead to the pain of appendicitis. Okay. So, after the cecum, the second part is colon. The colon is further divided into three parts, that is ascending colon, transverse colon, and the descending colon. Okay, so this is our ascending colon, this is our transverse colon, and this is our descending colon. Our third part is known as rectum. So, it is a sac-like structure at the end of the descending colon, which is known as rectum, in which the wasted part before ejecting out of the body is stored. Okay, and the last part is known as anus, which is the posterior end of our alimentary canal. Okay, so these are the different part of our alimentary canal which functions in the process of digestion. Okay, so in this we have discussed all the part of the alimentary canal. Now we are going to discuss the wall of alimentary canal. Okay, wall of alimentary canal में अगर हम बात करें extending from esophagus to rectum, our wall of alimentary canal has basically four layers. Our first layer is known as serosa. Second is, we are talking about the walls outside from to inside. Okay, from outside to inside. Okay, so the outermost layer is known as serosa. The second layer is known as muscularis. It is known as muscularis. The third one is known as submucosa. And the last or the innermost is known as mucosa. So, if we draw the diagram of these walls in a TS section, it looks like this kind of, if suppose drawing from outside, this is our outermost layer named as serosa. This is known as serosa. Our serosa layer is made up of mesothelium, and the mesothelium किससे बनी है ये? Mesothelium से. ठीक है?
मेसोथेलियम हमारी क्या होती है, ये एपिथेलियम होती है हमारी ऑफ द विस्ट्रल ऑर्गन्स। एंड द सेकेंड लेयर इज नोन एज muscularis. It is known as muscularis. Why it is known as muscularis? Because it is made up of smooth muscle cells. Okay. और जो हमारे स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वो बेसिकली और मेनली टू टाइप की प्रेजेंटेशन देती हैं। ऑन द इनर साइड दे आर प्रेजेंट इन सर्कुलर पैटर्न and on the outer side it is present in longitudinal pattern, but in some cases oblique fibers may be present. Okay, our third layer is known as submucosa. It is known as submucosa. In the submucosa various capillaries or blood vessels or the lymph vessels are present. In case of duodenum, in the submucosa, various glands are also present. Then we will talk about the innermost layer of our gut wall, that is known as mucosa. So, mucosa is the innermost layer of the alimentary canal and it can vent into various modifications इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें स्टमक का, तो जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर हमारी जो म्यूकोसा लेयर है वो मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं रगे। हमारे रगे क्या होते हैं, दीज आर द इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। सपोज इफ द स्टमक इज एम्प्टी, तो ये हमारे रगे क्या होंगे, ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे। और अगर हमारा स्टमक फुल है तो ये क्या होंगे, हमारे डिमिनिश हो जाएंगे साइज में। ओके, वहीं पे अगर हम एग्जांपल लें स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो म्यूकोसा होती है वो क्या बनाती है, वेरियस प्रोजेक्शंस बनाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। Okay, let's see the structure of villi. These are the projections or irregular folds in our small intestine. These villi are numerously supplied by various capillaries and lymph vessels. And these capillaries and lymph vessels are together known as lacteal. क्या बोलेंगे हम इनको, lacteal. Okay, so हमारी जो म्यूकोसा लेयर है वो फर्दर मॉडिफिकेशंस में भी जाती है। अगर हम स्टमक की बात करें तो उसके अंदर वो जो हमारी बेसिक जो म्यूकस लेयर है इनसाइड की वो फॉर्म करती है, दैट प्रोड्यूसेस अवर म्यूकस। And in the small intestine, it leads to formation of crypts of Lubberkin. It forms crypts of Lubberkin. Okay, so we have discussed about the wall of alimentary canal and the structures of alimentary canal. Now we will discuss the second part of our digestive system, that is our digestive glands. Okay, so अगर हम glands की बात करें, mainly अगर हम माउथ से स्टार्ट करें तो माउथ में हमारी 3 ग्लैंड्स होती हैं। ओके, सेकंड ग्लैंड हमारी मेजर ग्लैंड जो होती है वो होती है लिवर, एंड द थर्ड वन इज पेनक्रियास। थर्ड वन इज पेनक्रियास। ओके, सो हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन द माउथ अगर हम ओरिएंटेशन के साथ डिस्कस करें, सपोज दिस इज द फेस। सो मेनली हमारे माउथ के अंदर वेरियस मेजर जो हमारी होती है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ एक हमारी माइनर भी होती है। अगर हम मेजर की बात करें तो सबसे हमारी 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहली होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड,
second one is submaxillary. Second is our submaxillary or the submandibular gland. Submandibular gland. And the third is sublingual. Okay. So अगर हम पैरोटिड ग्लैंड के लोकेशन की बात करें, सपोज दिस इज अवर ईयर, सो पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट बिहाइंड और beneath our ear. It is the largest gland that contributes most of the saliva formation. Second is our submaxillary और submandibular gland. इसकी लोकेशन हमारी कहाँ होती है? Below mandible और हम बोले below maxilla. So what is maxilla and what is mandibular? Okay, maxilla and mandibular are our jaw bones. The upper jaw bone is known as maxilla and the lower jaw bone is known as mandible. Okay, so अगर हम सबलिंगुअल की बात करें तो जो लिंगुअल वर्ड हमारा होता है वो हमारा एसोसिएटेड होता है विद द टंग. सो sublingual gland is present beneath the tongue. Okay, this is our sublingual, and this is our submandibular. This is our parotid. Okay, so जो हमारे इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं वो स्पेसिफिक डक्ट्स के थ्रू हमारी बक्कल कैविटी में आते हैं फॉर द हेल्पिंग ऑफ डाइजेशन. ओके, सो हमारी पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है इसको हम बोलते हैं स्टेंशंस डक्ट. क्या बोलते हैं? स्टेंशंस डक्ट. और जो हमारी सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड की जो हमारी डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं वार्टन्स डक्ट. इट इज नोन एज वार्टन्स डक्ट. ओके, स्टेंशंस डक्ट, वार्टन्स डक्ट. और जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है उसकी जो हमारी डक्ट होती है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रेन्यूअर. डक्ट ऑफ रेन्यूअर. ओके, so these are the specific duct which are responsible for carrying the saliva in our buccal cavity. After that, the major gland is our liver. Okay, liver is the largest gland in the human body which approximately weighs from 1.3 kgs to 1.5 kgs. Okay, liver is a bilobe structure. इसका क्या मतलब है? जो हमारा liver होता है उसकी दो लोब होती हैं which are divided by a ligament known as falciform ligament, which is known as falciform ligament. जो हमारा liver होता है ये एक अकेला organ है which is capable of regeneration. अगर हम with diagram इसको देखें, okay, so this is a bilobe structure divided by a ligament known as falciform ligament. Okay, right lobe is larger than the left lobe. Okay, so what is the structural and functional unit of liver? It is known as hepatic lobule. क्या बोलेंगे इसको? हिपैटिक लोब्यूल. अगर हम हिपैटिक लोब्यूल की स्ट्रक्चर को देखें, इट इज लाइक हेक्सागोनल इन शेप. Okay, so various cord-like structures are present in the hepatic lobule, and the hepatic lobule is covered by a capsule known as, which is covered by a capsule known as Gleason's capsule. क्या बोलेंगे इसको? Gleason's capsule.
Okay, at every corner of this lobule a triad is present which is known as portal triad. क्या बोलेंगे? Portal triad. Okay, this is the structural and functional unit of liver. So the secretion of the liver that is known as bile. क्या बोलेंगे उसको? Bile is concentrated and stored in our a bag-like structure. It is stored in a bag-like structure which is known as gallbladder. Which is known as gallbladder. Okay, so the duct of liver, जो liver की duct होती है उसको हम बोलते हैं hepatic duct. It is known as hepatic duct. And the duct of gallbladder is known as cystic duct. क्या बोलेंगे? Cystic duct. They both combine and form a common duct which is known as common bile duct. It is known as common bile duct, जिसको हम CBD भी बोलते हैं. So ये जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है ये एक सी शेप की कनकेविटी में ओपन होती है या यू शेप की कनकेविटी में ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं ड्यूोडेनम. Okay, so by a duct known as all the secretions from the liver and the pancreas opens by a duct known as hepatopancreatic duct. Hepato means from liver, pancreatic from pancreas duct. Okay, and the duct or the opening is guided by a sphincter known as sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi. Okay, and in the concavity of the duodenum a leaf-like structure is present which is known as pancreas. It is known as pancreas. So pancreas is our neck gland that we are going to discuss. Talking about pancreas, it's a mixed gland or a compound gland. एक मिक्स ग्लैंड है या फिर कंपाउंड ग्लैंड भी बोल सकते हैं. इसका क्या मतलब है? मिक्स ग्लैंड से क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फंक्शंस बोथ एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड और अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. जो इसका एंडोक्राइनल पार्ट है इट सिक्रीट वेरियस hormones like glucagon and insulin, and the exocrine part secretes the juices which contain various enzymes. What is the function of this glucagon and insulin? These functions for the regulation of glucose in our body. Suppose if their level is disbalanced or unbalanced, so it will lead to irregular uptake or utilization of glucose and can lead to diabetes in a person. Okay, so we have discussed all the glands and the structure of alimentary canal and the wall of alimentary canal. We have discussed the digestive system. Now we will discuss our next subtopic, that is the process of digestion. अगर हम process of digestion की बात करें तो उसके अंदर बेसिकली हमारे दो प्रोसेसेस आते हैं. फर्स्ट होता है हमारा मैकेनिकल प्रोसेस एंड द अदर वन इज केमिकल प्रोसेस. ओके, हमारे कौन से प्रोसेसेस होते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस एंड द केमिकल प्रोसेस. ओके, सो हम जो डाइजेशन है उसको वन बाय वन अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें, हमने डिस्कस किया था जो बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर मेनली हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? अवर टीथ, टंग एंड द सलाइवा.
ओके, सो जो हमारे टिथ और टंग है वो क्या फंक्शन करते हैं? उनका मेन फंक्शन होता है टू मेस्टिकेट द फूड एंड हेल्प इन swallowing of the masticated food. So with the help of saliva, the food that is masticated by our teeth with the help of tongue is deglutition or degluted in our esophagus. So हम अगर देखें सलाइवा की कंपोजिशन के अंदर हमारे कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं? सो हमारे सलाइवा के अंदर कौन से कंटेंट होते हैं? फर्स्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, that are sodium, potassium, chloride and bicarbonate. Okay, second is our mucus, third is our lysozymes, and the important most enzyme salivary amylase. ओके, सो जो हमारा म्यूकस होता है वो हमारा हेल्प करता है इन एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स. क्या हेल्प करता है? टू अडहेर द फूड पार्टिकल्स. जो हमारा मेस्टिकेटेड फूड है उसको अडहेर करने में हेल्प करता है और क्या बना देता है? हमारा बोलस. It leads to formation of bolus. Mixing of the saliva with the masticated food is known as bolus. Okay, जो हमारे lysozymes होते हैं वो फंक्शन करते हैं as our bactericidal. Is our bactericidal. ओके, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे बैक्टीरियोसाइडल की तरह एक्ट करते हैं. और जो हमारा स्लाइवरी अमाइलेज होता है, सो हमने जो मैस्टिकेशन का प्रोसेस देखा, मैस्टिकेशन का प्रोसेस होना इन द बक्कल कैविटी इज अवर मैकेनिकल प्रोसेस. एंड व्हाट अबाउट द केमिकल प्रोसेस? अगर हम केमिकल प्रोसेस की बात करें तो माउथ के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है वो हमारा होता है विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज. जो हमारा स्लाइवरी अमाइलेज होता है वो क्या फंक्शन करता है? इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू अ डाइसैकेराइड दैट इज माल्टोज. इट कन्वर्ट्स द स्टार्च दैट इज अवर salivary amylase in the presence of salivary amylase at the pH of 6.8, okay, into disaccharide that is our maltose. ओके, टोटल जो हमारा स्टार्च होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है. ओनली 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन अवर बक्कल कैविटी. ओके, सो नेक्स्ट is our esophagus. In the esophagus, no digestion process takes place. Only the muscular movements which will help in swallowing or deglutition will take place, that we have already discussed, is known as peristalsis. Is known as peristalsis. Okay. And the next structure, that is our stomach. In our stomach, there are 3 type of cells are present. 3 specific type के सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर. फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारे होते हैं म्यूकस नेक सेल्स. म्यूकस नेक सेल्स. सेकंड हमारे होते हैं पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स. थर्ड हमारे होते हैं चीफ सेल्स. ओके, सो इनका फंक्शन क्या
होता है, जो हमारी म्यूकस नेक सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं म्यूकस, और जो हमारी पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं ये हमारी क्या सिक्रीट करती हैं, HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, और जो हमारी चीफ सेल होती हैं ये एक प्रो एंजाइम सिक्रीट करती हैं विच इज इनएक्टिवेटेड एंजाइम दैट इज नोन एज पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। ओके, सो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, सो हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर जो हमारा फूड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स के लिए स्टे करता है। ओके, और हमारे स्टमक के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग अवर फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस। इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट्स। क्या बोलेंगे, churning movements. Okay, so when the churning movement occur in the gastric region, it will lead to mixing of the food with our gastric juices. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फूड होगा प्लस our gastric juices will make a specific kind that is known as chyme, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलेंगे। ओके, सो हम इनकी फंक्शन की बात कर रहे थे। जो हमारी म्यूकस सेल होती है ये क्या फंक्शन करती है, दी सिक्रेट म्यूकस विच हेल्प विद द बाइकार्बोनेट इन परफॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर फंक्शन इनसाइड अवर स्टमक। ये क्या फंक्शन करती है, बिकॉज हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर जो हमारी पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है, सो उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है किसको, हमारी इनर लेयर ऑफ द स्टमक को। ओके, सो हमारी जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जैसे कि हमने बात करी, HCl सिक्रीट करती हैं विच मेंटेन्स अ pH ऑफ 1.6 इन आवर स्टमक। ओके, विच इज वेरी हेल्पफुल इन द डाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ अवर प्रोटीन। ओके, सेकेंड इज अवर इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे हेल्पफुल होते हैं फॉर द absorption of B12, विटामिन B12। ओके, और जो हमारी चीफ सेल्स होती हैं ये एक प्रो एंजाइम सिक्रीट करती हैं विच इज नोन एज पेप्सिनोजन। ओके, सो हमारा जो पेप्सिनोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जो हमारा पेप्सिनोजन होता है in the presence of HCl at the pH of 1.6 convert into a specific kind of enzyme that is activated enzyme that is pepsin, and this pepsin is responsible for the hydrolysis of protein present in our food, okay, into proteases and peptones. So we have discussed the digestion of protein by pepsinogen in the presence of HCl at the pH of 1.8 into pepsin, which leads to the hydrolysis of protein into proteases and peptones. Okay, along with this a small amount of lipases are also secreted in our stomach which will help in hydrolysis of little amount of fat present in our food. Okay, in the stomach of a infant a specific kind of enzyme is present known as renin, which will help in the digestion of milk protein. Digestion of milk protein in the stomach of an infant. Okay, moving to the next structure, that is our small intestine. In the small intestine, various kind of muscular movement occur which is responsible for mixing the intestinal juices with our food. Okay,
So these muscular movements will lead to mixing of food with our intestinal juices. So हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस के जूसेस आते थे हमने डिस्कस किया था. बाइल फ्रॉम द लिवर एंड गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक जूसेस एंड द इंटेस्टाइनल जूसेस. जो हमारे बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं ये एक कॉमन डक्ट के थ्रू आते थे जिसको हम बोलते थे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ओके. और जो हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होते हैं बाय स्पेसिफिक इनर सेल्स. ओके. सो अगर हम डिस्कस करें जो हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं उनके अंदर हमारे वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, amylases, lipases and nucleases. ओके. सो हम अब वन बाय वन इन एंजाइम्स का फंक्शन देखेंगे. सबसे पहले जो हमारा ट्रिप्सिनोजन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ enterokinase, which is an enzyme present in the intestinal juice, convert into an active enzyme. It is an inactive enzyme. Okay, it will convert into an active enzyme that is known as trypsin. Okay, it will convert into trypsin, which will further activate the rest of the enzymes. For example, it converts the procarboxypeptidase into carboxypeptidase, and the chymotrypsinogen into chymotrypsin. Okay, all the three, these trypsin, carboxypeptidase and chymotrypsin, trypsin plus carboxypeptidase plus chymotrypsin leads to the hydrolysis of protein into proteins or the proteases, okay, and peptones into diapeptide. ओके. हमारे ट्रिप्सिन ने मिलके, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने मिलके और जो काइमोट्रिप्सिन था, इन तीनों एंजाइम ने मिलके जो हमारे प्रोटीन थे, प्रोटीएजेस थे और पेप्टोन्स थे, उनको तोड़ दिया किसमें? डाइपेप्टाइड्स में. ओके. नेक्स्ट इज अवर amylases. Amylases will convert the starch into disaccharides or monosaccharides. Okay. Next is our lipases. Lipases will break down the fat. Okay. So जो हमारा फैट था या फिर लिपिड्स थे,
उसको तोड़ देंगे हमारे कौन, लाइपेजेस इंटू डाइग्लिसराइड, ओके। और जो हमारे न्यूक्लियसेस थे वो किसको तोड़ेंगे, हमारे न्यूक्लियोसाइडाइड्स को, टू न्यूक्लियसेस किसको तोड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। This is the breakdown that occur by the pancreatic juices. Okay, हमने सबसे पहले क्या देखा, कुछ हमारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि हमारा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, okay, amylases, lipases and nucleases, which will lead the breakdown of our various food components that are carbohydrate, fat or protein. Okay, so हमने देखा कि activated part, that is trypsin, chymotrypsin, these will together break down the proteins, and the starch will break down by amylase, fat or lipid will digested by lipases, nucleotides or nucleic acids are digested by nuclease into nucleotides and nucleosides. Okay, यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, इसके बाद जो हमारा सिक्रीशन था दैट इज फ्रॉम लिवर, दैट इज अवर बाइल। बाइल हमारा क्या फंक्शन करेगा, तो इन अवर बाइल विच इज सिक्रीटेड बाय अवर लिवर, what are the contents that are present are bile pigments, these are bilirubin and biliverdin. Next is our bile salt, next is cholesterol, next is phospholipids, but the thing to note is in the bile no enzymes are present. What is the function of bile? Bile helps in emulsification of lipid. It helps in emulsification of lipid. What do you mean by emulsification? Emulsification is the process of breakdown of lipid into small misses. Okay, and the bile also activates some lipases. Okay, which will further help in the breakdown of lipid. Okay, so next is our intestinal juices. The secretions from the small intestine, helps in digestion of the product that we have gained from the large chemical process into further smaller parts. Okay, so सबसे पहले अगर हम देखें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो हमारे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, will secrete mucus which is a part of succus entericus, which means mucus along with the secretions of brush border cells of intestine. जो हमारे इंटेस्टाइन होती है उसकी ब्रश बॉर्डर सेल्स के सिक्रीशंस के साथ में मिलकर जो हमारा म्यूकस होता है वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिक्रीशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं सक्कस
एंट्रिकस, जिसको हम हमारा इंटेस्टाइनल जूसेस भी बोलते हैं। ओके, जो हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, सिकस इंट्रिकस होता है, इसके अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे होते हैं डाइसैकेराइडेजेस, डाइसैकेराइडेजेस, lipases, peptidases, nucleotidase और nucleosidase, the dipeptidases, will cause the hydrolysis of the dipeptides, which are the product of hydrolysis from the pancreatic juices into various monopeptides. Okay, and the breakdown of disaccharides, अगर हम एग्जाम्पल लें maltose का, will break down into glucose plus glucose in the presence of maltase, and the lactose will break down into the glucose plus galactose in the presence of lactase, and the sucrose will break down into glucose plus fructose in the presence of sucrase. This is about the hydrolysis of disaccharides. Now, with the help of lipases, the diglycerides or the monoglycerides, will break down into, with the help of lipases, will break down into fatty acid plus glycerol. Fatty acid plus glycerol. Okay. And the nucleotidases and nucleosidases will break down the nucleotides, nucleotides with the help of nucleotidases will break down into nucleosides, the result of nucleosides, and then with the help of nucleosidases will result in formation of sugar plus bases. Okay, we have discussed the digestion in our alimentary canal. Now let's summarize the digestive process in a brief. Okay, before moving to the process of absorption. So हमारा digestion का जो process है वो हमारा start होता है in the buccal cavity with the mastication of the food and the mixing of saliva. The mastication of food and the saliva, food plus mucus, resulting formation of bolus, which will pass down with the help of peristalsis in the esophagus, and in the stomach, at the level of stomach, with the help of churning movements, it mixes with the
gastric juices plus food or the bolus will result in formation of chyme. The food remains in stomach for 4 to 5 hours and in the stomach mainly हमारा किसका ब्रेकडाउन होता है, हमारा प्रोटीन्स का. ओके, with the help of pepsin. Okay, with the help of pepsin into peptones and proteose. ओके, तो हमारे स्टमक में मेनली प्रोटीन्स का हमारा हाइड्रोलाइसिस होता है और थोड़ा बहुत हमारा किसका होता है, लिपिड्स का, विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस. ओके, नेक्स्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की भी अगर हम बात करें तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है मेनली हमारा अप टू ड्योडेनम होता है. आफ्टर द ड्योडेनम इन द जेजुनम एंड इलियम द डाइजेस्टेड पार्ट और द रिमेनिंग पार्ट इज अब्सॉर्ब. मेनली अब्सॉर्प्शन का जो काम होता है वो हमारा किस में होता है, हमारा जेजुनम और इलियम में. तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर हमारे जो पैनक्रियाटिक जूसेस थे, पैनक्रियाटिक जूसेस से हमारा क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किसका ब्रेकडाउन होता है, हमारे प्रोटीन्स का और पेप्टोजेस का. प्रोटीन्स का और जो हमारे ब्रेकडाउन हुए थे यहाँ पे पेप्टोन्स का और प्रोटियोसिस का. ओके, सो हमारा जो प्रोसेस है वो इन कंटिन्यूएशन चल रहा है. जो इसके बाय प्रोडक्ट्स आए थे वो इसके लिए हमारे रिएक्शन के लिए फर्दर रिक्वायर्ड होंगे. तो जो हमारे ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं ये इन पे वर्क करेंगे और हमारा क्या प्रोडक्ट बना देंगे, डाइपेप्टाइड्स. ओके, इन द पैनक्रियाटिक जूसेस अदर एंजाइम्स आर lipases which will break down the lipids. और हमारे लिपिड्स किसके अंदर टूट जाएंगे, डाइग्लिसराइड और हमारे मोनोग्लिसराइड. ओके, और जो हमारा स्टार्च है या हमारा डाइसैकेराइड्स हैं वो हमारे विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज किसमें ब्रेक डाउन हो जाएंगे, हमारे मोनोसेकेराइड्स. ओके, एंड सम न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स will also break down into nucleotides. ये जो हमारा डाइजेशन था विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस था, अलोंग विद द बाइल. जो हमारा बाइल होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जो हमारा फैट होता है उसका क्या होगा, इमल्सिफिकेशन होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस और सक्कस सेंट्रिकस, इंटेस्टाइनल जूसेस और सक्कस सेंट्रिकस हमारा क्या होगा, जो इनके प्रोडक्ट्स आए थे वो फर्दर ब्रेक डाउन होंगे इनटू मच सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म. सो हमारे जो डाइपेप्टाइड्स थे वो डाइपेप्टाइडेजेस की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोपेप्टाइड्स में. ओके,
ओके। और जो हमारे डाइसेकेराइड से लाइक माल्टोज, सुक्रोज and lactose will further break down into, with the help of maltase, it will convert into glucose plus glucose. Sucrose will convert into glucose plus fructose, and the lactose will convert into glucose plus galactose. Okay, and the लिपिड और द जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स थे डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स थे with the help of nucleotidases, टाइडेजेस किस में कन्वर्ट हो रहे थे, न्यूक्लियोसाइड्स में। और जो न्यूक्लियोसाइड्स थे with the help of न्यूक्लियोसाइडेजेस हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शुगर प्लस बेसिस में। इज इट क्लियर नाउ? सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ द डाइजेशन process. Okay, now all the digestion process takes up to the level of duodenum. In the jejunum and the ileum, the absorption process takes place. Okay, so all the unabsorbed or undigested part passed into our jejunum and ileum. Okay, and the used और द अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब जो पार्ट होता है वाया इलियोसिकल वॉल पास इनटू अवर लार्ज इंटेस्टाइन। सो लेट्स डिस्कस द लार्ज इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है। मोस्टली जो हमारा डाइजेस्टेड पार्ट था या फिर जो अनवांटेड पार्ट था वो हमारा फर्दर पास ऑन हो जाएगा और जो हमारा डाइजेस्टेड पार्ट था उसका अब्जॉर्प्शन होगा। सो फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल and some drugs. And in this large intestine, secretion of mucus occur. From the mucosa layer, mucus secretion occur which help in adhering all the waste and lead to formation of fecus. Okay, and the mucus also provide lubrication for passing out the fecus through our anus. Okay, so this is the process of digestion takes place from mouth up to the level of our large intestine. After this, the feces has been formed, and before passing out or ejecting out it outside the body, it will stored in the rectum for some time. When the neural reflex come, it will defecated out of the body. Okay, so we have discussed the digestive system, digestion process. Now we will discuss what is absorption. And how it will take place. So absorption is the process of passing out the output that we get from the digestion of the food through the intestinal mucosa into blood and the lymph vessels. हम क्या बोलेंगे absorption को? Process of passing of
digested products through what? Intestinal mucosa, through the intestinal mucosa into blood and lymph vessels, so that the absorbed part or the utilizable part can be reached to our tissue that required it for its growth or for healing or for some other purposes. Okay, so जो हमारा absorption का process है, हम सबसे पहले डिस्कस करें जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा इन प्रोडक्ट्स का via the mucosa occur by 3 processes. First, it can be by diffusion. Second, it can be active transport. And third, it can be passive transport. Okay. So, in the diffusion हमारा क्या होगा, इसमें जो हमारी concentration gradient के according, suppose if the outer concentration is more of the content in comparison to the concentration inside the mucosa, the product, suppose there is this much concentration outside the mucosa or in the gut, and the concentration inside is this much. So according to the concentration gradient, the product will move into the intestinal mucosa. Okay. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ओके, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है. इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होगा? विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी जो हमारा होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट होगा. एक हमारा हो सकता है फैसिलिटेटरी ट्रांसपोर्ट. हमारे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ सम आयन जो हमारा एब्जॉर्प्शन के लिए जाना है एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा पार्ट जाना है, फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयंस और एनी पंप, it will move into the mucosa. Okay, by these methods the absorption process takes place. All the parts which are converted into simpler form by the digestion will move by this process, but the lipids are as such not soluble in the blood and in the lymph vessels. So जो हमारे लिपिड्स होते हैं उनका फर्स्टली ब्रेकडाउन होगा इनटू स्मॉल मिसल्स, ओके, एंड बिफोर मिक्सिंग इट विद द ब्लड दे आर कोटेड विद प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन कोटिंग of the miscels is known as काइलोमाइक्रोन. तो हम इनको अब क्या बोलेंगे? काइलोमाइक्रोन. ये जो हमारे काइलोमाइक्रोन्स होते हैं आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द म्यूकोसा विल फर्दर एग्रीगेट इनटू द नॉर्मल फॉर्म एंड विल ट्रांसपोर्ट थ्रू द अवर नॉर्मल मैकेनिज्म. ओके, सो all these parts which are transported will reach to various parts of the body or different tissues for their utilization. डिस्कस किया जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, अगर हम उनको देखें कि कहाँ कहाँ कौन सा अब्जॉर्प्शन होता है. मेनली अगर हम माउथ की बात करें तो हमारे माउथ में क्या क्या होता है? वाटर, सम ड्रग्स
जो है वो अब्जॉर्ब होंगी, वो भी कौन सी, जो हमारे बक्कल कैविटी की मिकोजा के साथ या हमारी सबलिंगुअल रीजन में जो हमारी कैपिलरीज हैं उनके कांटेक्ट में आएंगी, वो उनका जो हमारा अब्जॉर्प्शन है वो हमारा माउथ में होगा। नेक्स्ट इज अवर स्टमक। इन द स्टमक आर अल्कोहल, water and some extra products are absorbed. In the small intestine, which is our major part for the absorption, almost all the products are absorbed. In the large intestine हमारा क्या होगा, जो मिनरल्स होंगे, वाटर होगा और जो हमारी ड्रग्स होंगी वो क्या होंगी, अब्सॉर्ब होंगी। ओके, और इसके बाद जो हमारा अनअब्सॉर्ब पार्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, द अनएब्सॉर्ब्ड और अनवांटेड बन जाएगा हमारा फेसेस। ओके, सो फिकस फॉर्मेशन हो जाएगी। जो हमारा प्रोसेस होता है ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ absorbed product by body tissue, उसे हम क्या बोलते हैं। हमने बात किया कि जो हमारी अब्सॉर्ब फॉर्म थी वो ब्लड के अंदर इन्वॉल्व होएगी, फिर लिम्फ वेसल्स में जाएगी और इसके थ्रू हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं उनके पास जाएगी फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और जो हमारा प्रोसेस होता है फॉर इजेक्टिंग आउट द फिकस ऑफ द बॉडी, उसको हम बोलते हैं ejection. It is known as ejection. So here we completed our absorption part. Now we will discuss what are the disorders that are connected with the abnormal digestion. Abnormal digestion के साथ हमारा क्या क्या कनेक्टेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर हमारी इन्फ्लामेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है by various living organisms, okay, like tapeworm, hookworm, जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर जो फर्दर बाहर से हम फूड के थ्रू और फीको ओरल रूट से हम वेरियस इन्फेक्शंस गेन कर सकते हैं, जिससे हमारी जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसका क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, which can lead to various possibilities can be there। अगर हम बहुत ही कॉमन कंडीशंस की बात करें तो उसमें हमारे क्या हो सकते हैं, हमें वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ओके, इनडाइजेशन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। ओके, सो जो हमारी वोमिटिंग होती है वो क्या होता है, रीगर्जिटेटिंग ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। रीगर्जिटेटिंग का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है, जो हमारे स्टमक के कंटेंट थे उनका वापस आ जाना थ्रू द फूड पाइप और द माउथ आउटसाइड इज नोन एज वोमिटिंग। ओके, हमारी कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, इन द कॉन्स्टिपेशन जो हमारा फीकस था या फीकल मैटर था जिसे हमें इजैकुलेट करना था, बिकॉज द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूसिंग म्यूकस, ओके, सो हमारा म्यूकस क्या होता है, वो लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि हमारा जो फीकल मैटर है वो इजीली पास आउट हो सके। अगर हमारा कहीं पे भी हमारी अगर एक्टिविटी अगर सही नहीं हो रही है और अगर म्यूकस प्रोडक्शन इफेक्टेड है
और जो हमारी मूवमेंट्स होनी थी, मस्कुलर मूवमेंट्स टू पास आउट द फीकल मैटर, वो अफेक्टेड है, तो जो हमारा प्रोसेस ऑफ इजेक्शन है वो इफेक्ट हो जाएगा, और जो हमारी इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से जो हमारा फीकल मैटर है वो रेगुलर टाइम पे हमारा जो बाउल है वो पास नहीं होगा, विच विल नोन एज कॉन्स्टिपेशन. ओके. थर्ड इज अवर डायरिया. डायरिया मीन्स passing of various times irregular watery stools. जो हमारे irregular time पे repeatedly अगर हम watery stool पास करता है कोई पेशेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंडीशन इज नोन एज डायरिया. ओके. सो उसके बाद है हमारा इनडाइजेशन. इनडाइजेशन क्या होता है? इस सिंपल जस्ट एक कंडीशन जिसके अंदर जो हमारा नॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस था वो प्रॉपरली नहीं हुआ है. इसके लिए वेरियस रीजंस हो सकते हैं, लाइक ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड, हैविंग फुल ऑफ स्टमक, और ईटिंग मच मोर फूड देन नीड. ओके. और सम अदर डिजीज दैट इन्वॉल्विंग आवर डाइजेशन प्रोसेस. सो हमें इसमें क्या फील होगा? फुलनेस ऑफ स्टमक फील होगी. ओके. सो दिस इज नोन एज इनडाइजेशन. आफ्टर दैट कंडीशन नोन एज जॉन्डिस. जॉन्डिस में हमारा क्या होता है? जो हमारे बाइल के कंपोनेंट्स से, बाइल पिगमेंट्स से, दैट आर bilirubin and biliverdin. In the bilirubin and bilirubin और biliverdin, इनका जो मेटाबॉलिज्म था और यूटिलाइजेशन था बॉडी में वो प्रॉपर नहीं होता है, और ये जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस रीजंस के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, विच लीड्स टू येलोइश कलरेशन ऑफ, which leads to yellowish coloration of sclera of eye, skin color, and the mouth mucosa. So जो हमारी माउथ के मिकोसा है, स्क्लेरा ऑफ आई है, और जो हमारी स्किन है उसके अंदर येलोइश पिगमेंटेशन हो जाएगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस पिगमेंट्स. सो दीज आर द कॉमन डिसऑर्डर्स दैट आर कनेक्टेड विद अवर टुडेज टॉपिक. ओके. इज इट क्लियर टू एवरीवन?